So we were discussing transducers in the last class और transducers ने users में हमने discuss किया था कि it consists of a sensing element and a transducer which will convert this sensed physical quantity into an electrical quantity. So basically a transducer it is a device that converts one form of energy to other form, and it converts the measurand to a usable electrical signal, which can be either voltage, which can be either current or power, etc. So it can be any electrical signal. In other words, it's a device that is capable of converting the physical quantity into proportional electrical quantity such as voltage or current. Which means that कि suppose अगर हमको temperature measure करना है, suppose we have a boiler uh, in a thermal power plant, we have a boiler, and in that boiler we want to measure the temperature of the boiler कि कितना हम कोल बर्न कर रहे हैं, तो कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है बॉयलर का, बिकॉज एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर यू नीड टू बर्न द कोल ऑफ द coal in the boiler. Okay, coal is crushed and then burned in the boiler at a fixed temperature and pressure, और ये temperature और pressure जो है वो तुमको maintain करना पड़ेगा. So there you have to sense the temperature of the boiler. So for each temperature, for each degree of change of temperature, what is the equivalent voltage or current which is being produced in the transducer is what proportional to the electrical quantity such as voltage or current mean. मतलब कि for each change in physical quantity there will be a change in the proportional electrical quantity. So basically transducer is a device which consists of a sensor. Along with the sensor you have a transducer which will convert this physical quantity which is being sensed into an electrical quantity. Now ये transducer electrical quantity में कैसे convert करेगा? There are different classification of transducer, and depending upon that we will convert one quantity to another quantity. There are inductive type transducer, capacitive type transducers, resistive types transducer. तो बहुत तरीके के transducers होते हैं, ठीक है. Now this is the block diagram of transducer. Transducer contains two parts that are closely related to each other. First is the sensing element and second is the transduction element. So here you can see in the block diagram, this is the parameter, for example pressure, temperature, force, etc. कोई भी physical quantity जो कि हम measure करना चाहते हैं, उसके साथ हमने लगाया अपना sensing element. सेंसिंग एलिमेंट हमको एक सेंसर का आउटपुट देगा और इस आउटपुट को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसडक्शन एलिमेंट. ओके, सो लास्ट क्लास में भी मैंने जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि अ सेंसर इज नॉट नेसेसरीली अ ट्रांसड्यूसर, बट अ ट्रांसड्यूसर कंटेन्स अ सेंसर. बिना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सेंस किए हुए हम ट्रांसड्यूसर नहीं बना सकते. ओके, सो सेंसर is a part of a transducer, but a sensor cannot always be a transducer. जैसे कि for example a thermometer. So thermometer is a sensor. It senses the temperature, but it does not converts the temperature into an electrical quantity. So it is not a transducer. ठीक है. Whereas a thermocouple, strain gauge, etc. जो कि जो हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, थर्मिस्टर हो गया, थर्मोकपल हो गया, ऑल दीज डिवाइसेस आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर. बट टेम्परेचर मेजर करने के साथ ये टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम इसको ट्रांसड्यूसर बुलाते हैं. So the sensing element is called as the sensor. It is device producing measurable response to change in the physical condition. Suppose there is delta degree change in temperature. So this sensing element should be capable of measuring that delta degree change in temperature.
So that is the property of a sensing element. सेंसिंग एलिमेंट बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत ही रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, सो दैट इवन इफ देर इज अ सर्टेन डिग्री ऑफ चेंज इन द सेंसिंग पैरामीटर, इट कैन बी एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को हम सेंसिंग एलिमेंट से सेंस कर सकें. द ट्रांसडक्शन एलिमेंट कन्वर्ट्स द सेंसर आउटपुट इनटू एन इलेक्ट्रिकल फॉर्म. Now the question is, why only in electrical form? This output, this physical quantity could have been converted into mechanical form या chemical form, किसी भी form में convert कर सकते थे और measure कर सकते थे. Electrical form में convert करने से what is the advantages of converting any physical quantity into an electrical form? मैम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इजीली कर सकते हैं और कॉस्ट भी मिनिमाइज. Cost minimize. Ma'am, Okay, you because can. electrical energy is the most conventional source of energy. Okay, convenient in which sense? मैम एवरीथिंग, मतलब उसको कोई इजीली से कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. Okay, कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, यू कैन एक्सप्लेन. मैम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल. इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल बताओ. देयर इज समथिंग यू हैव हर्ड अबाउट, या तुमने पढ़ा है जिसके एक ऐसा डिवाइस बताओ जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है. मोटर. मोटर. So what do you refer to it कि electrical motor is a transducer or not? Is it a transducer? नो मैम. And why? तुमने बोला कि किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके फाइन, बट वेदर इलेक्ट्रिकल मोटर इज अ या इलेक्ट्रिकल फिर वो जनरेटर रिवर्स ट्रांसड्यूसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा तो. See, here we are studying about electrical transducer, but transducer is something which converts one form of energy into another form of energy. यहाँ पर हम उसको इलेक्ट्रिकल मतलब आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म के एनर्जी में पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांसड्यूसर का जनरल डेफिनेशन जो होता है, इट इज़ a device which converts one form of energy into another form of energy. तो एक तरीके से if you see कि इलेक्ट्रिकल मोटर या जनरेटर जो भी है, इफ़ यू से लाइक दिस, अगर तुम ऐसे बोलो तो तुम बोलोगे जनरेटर इज़ अ ट्रांसड्यूसर और मोटर ट्रांसड्यूसर नहीं है. ऐसा नहीं है, दोनों ही ट्रांसड्यूसर है, बट दोनों ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है. बट उसको हम ट्रांसड्यूसर के सेक्शन में क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए नहीं पढ़ते बिकॉज ट्रांसड्यूसर इज समथिंग वेयर यू आर सेंसिंग सम फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, sensing some physical quantity, and motor is not being applied for sensing any physical quantity. ठीक है, तो इसलिए उसको ट्रांसड्यूसर के सेक्शन में हम नहीं डालते हैं, बिकॉज ट्रांसड्यूसर या जो भी हम स्ट्रेन गेज पढ़ेंगे या पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे, हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे और बहुत सारे ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे, तो वो सारे ट्रांसड्यूसर जो भी हैं, जो भी एलिमेंट है, ये सब क्या करेंगे, किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को सेंस करेंगे और तब उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे. बट इन केस ऑफ मोटर या जनरेटर, इनका मोटर या जनरेटर का बेसिक एप्लीकेशन कोई फिजिकल क्वांटिटी सेंस करना नहीं होता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम मैकेनिकल आउटपुट मैकेनिकल इनपुट किसी जनरेटर को दे रहे हैं और उससे हम बेसिकली सेंस करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल आउटपुट. ऑल्दो हम ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. अगर हम सपोज कि जनरेटर देयर इज़ अ इलेक्ट्रिकल जनरेटर और वहाँ पर हम मैकेनिकल इनपुट को चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट चेंज होगा, तो यू कैन यूज़ दिस जनरेटर और मोटर एज अ सेंसर एज वेल.
बट बेसिक एप्लीकेशन जो है मोटर्स का वो सेंसिंग का नहीं होता है, इसलिए उसको ट्रांसड्यूसर के सेक्शन में नहीं पढ़ते हैं. But it is also a kind of a transducer where one form of energy is converting into another form of energy. ठीक है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर. जैसे तुम लोगों ने बताया कि one form of energy can be converted easily, that is also one point. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ट्रांसमिशन ईजी है, ये भी तुमने बताया. सो दैट इज़ ऑल्सो वन पॉइंट. और किसी ने कुछ और भी बताया था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है. सो बेसिकली these few points which you can see on your screen are the advantages of electrical transducers. First is power requirement is very low for controlling the electrical or electronic signal. Now when you will see these transducers, अगर थर्मिस्टर देखो या थर्मोकपल देखो, तो ये जो थर्मोकपल या थर्मिस्टर्स हैं, ये बेसिकली 5 वोल्ट और 12 वोल्ट पर भी डीसी वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं. ठीक है. तो these transducers do not need a large amount of power for their operations. तो कम पावर में अगर if you see all your electronic devices, तो हर जगह थर्मिस्टर लगा रहता है, because you are using this electronic devices in a circuit, और with the power supply circuit का जो temperature होता है, because you are using semiconductor devices, तो temperature rise करता है, जिसकी वजह से इंटायर सर्किट का या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तुम्हारे लैपटॉप्स में है या टीवी में है, हर जगह थर्मिस्टर लगा रहता है. जहाँ भी कंट्रोल सर्किट है वहाँ थर्मिस्टर लगा रहता है, सो दैट कि अगर टेम्परेचर ऑफ द सर्किट राइजेस बियॉन्ड द लिमिट, तो वो जो थर्मिस्टर है वो ऑपरेट करेगा एंड इट विल आइदर कट ऑफ द पावर सप्लाई या जो भी फ़ैन को ऑपरेट करेगा. जैसे तुम्हारे पुराने लैपटॉप्स में जो फ़ैन प्रॉपर फ़ैन दिखता था, वो फ़ैन देखते होगे कि जब तुम्हारा लैपटॉप हीट अप हो जाता है तो वो फ़ैन अपने आप ऑपरेट करता था. तो दैट इज़ कनेक्टेड विद द थर्मिस्टर. थर्मिस्टर सेंस कर रहा है टेम्परेचर ऑफ योर इंटरनल सर्किट ऑफ योर लैपटॉप. जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा वैसे ही थर्मिस्टर विल गिव द कमांड टू द रिले, और रिले ऑपरेट करेगा तुम्हारे फ़ैन को, जिससे फ़ैन तुम्हारा लैपटॉप का जो फ़ैन है वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर तुम्हारा सर्किट का टेम्परेचर जो है वो कम डाउन हो जाएगा. फिर लैपटॉप का फ़ैन जो है वो अपने आप ऑफ हो जाता है वंस द टेम्परेचर गेट्स डाउन. तो ये बेसिकली एक फीडबैक लूप में हम पूरा सर्किट कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर हम सेंस करते हैं, उसके टेम्परेचर के हिसाब से ऑपरेट करते हैं फ़ैन को, और अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फिर से फ़ैन को ऑफ कर देते हैं. तो बेसिकली तुम्हारा लैपटॉप क्या है कि कम वोल्टेज पे काम कर रहा है और इंटरनल सर्किट्स जितने भी कनेक्टेड हैं कम पावर पे काम कर रहे हैं. तो दिस ट्रांसड्यूसर आर केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट वेरी लो पावर, विच इज़ वन ऑफ द advantages of using electrical transducers. Second is amplification of this electrical signals is very easy. Suppose कि तुमको 5 वोल्ट ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट है, suppose this electrical signal which is getting as an output of the transduction element, this is around of 5 volt. ठीक है. अब 5 वोल्ट को अगर तुम 2 किलोमीटर ट्रांसमिट करोगे थ्रू अ रेजिस्टिव वायर, तो वो 5 वोल्ट का ड्रॉप होने के साथ ही तुमको जो आउटपुट मिलेगा वो तुमको सही आउटपुट नहीं मिलेगा, काफ़ी आउटपुट ड्रॉप में चला जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली हम इस जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का आउटपुट यहाँ मिलता है, अगर उसको हमको बहुत दूर तक, सपोज कंट्रोल रूम जो है वो तुम्हारा काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक अगर ट्रांसमिट करना है तो वी एम्पलीफाई दिस सिग्नल, दिस आउटपुट, एंड देन वी ट्रांसमिट इट टू द कंट्रोल रूम और टू द प्लेस वेयर वी वांट टू रीड द सिग्नल. ठीक है. तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं. तो एम्पलीफिकेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ वेरी ईजी, वेराज इन केस ऑफ मैकेनिकल सिग्नल अगर तुम देखो कि अगर एम्पलीफिकेशन करना हो तो वहाँ पर बेसिकली गियर सिस्टम यूज़ करना पड़ता है. जैसे कि तुम लोगों ने बाइक्स एंड साइकिल्स में देखा है कि अगर तुमको एक्सिलरेट करना है या डी एक्सिलरेट करना है किसी भी सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम को, तो यू विल नीड अ गियर सिस्टम इन केस ऑफ मैकेनिकल आउटपुट. पर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल तुम सिर्फ एक एम्पलीफायर लगा सकते हो या एक
एटेन्यूएटर बोलते हैं एक सर्किट को, एटेन्यूएटर सर्किट लगा सकते हो और एम्पलीफाई कर सकते हो, या सिग्नल को कम कम मैग्नीट्यूड का भी करना इजी है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भी करना इजी है, वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शनल लॉसेस नहीं होगा इफ़ यू वांट टू एम्पलीफाई। वेराज इन केस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम अगर एम्पलीफाई करना होगा तो गियर सिस्टम लगाना पड़ता है, जहाँ पर फ्रिक्शनल लॉसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। So second point was amplification is easy. Third was frictional effect is minimized in case of electrical transducers. Fourth is mass inertia effect is also minimized because in case of electrical or electronic signals, the inertia effect is due to the mass of electrons which is negligible. But in case of mechanical system, अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सपोज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अगर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएगा तो एक सिस्टम का जो मास होगा और दूसरे सिस्टम का जो मास होगा दोनों अलग अलग होगा, और वहाँ पर मास इनर्शिया का जो इफ़ेक्ट है वो भी तुम्हारे आउटपुट को जो है वो डिक्रीज कर देगा, मतलब टोटल आउटपुट विल गेट डिक्रीज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ मास इनर्शिया, जो कि negligible है in case of electrical transducers. Last point is output can be indicated and recorded remotely from the sensing element, जो कि तुमने पहले भी बोला कि transmission of electrical signals is very easy. तो all these points you need to remember, क्योंकि ये short notes में या questions में आता है तुम लोग के short questions में, to write down the importance of electrical transducers or using electrical signals in transducers. So power is less, frictional loss is minimized, mass inertia effect is minimized, amplification is easy, and transmission is also easier in case of electrical transducers. And converting one form of signal to another form of signal, because you can convert a signal into capacitive transducer, सेम सिग्नल को तुम यूज़ करके रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर बना सकते हो, सेम सिग्नल को यूज़ करके इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर बना सकते हो, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ conversions which is possible in case of electrical transducers. Now the next point is characteristics of a transducer. जैसे किसी भी पर्सन का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे सम पीपल हैव अ वेरी गुड स्पोकन इंग्लिश, बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होता है किसी के अंदर, कोई कोई होता है बहुत टैलेंटेड होता है किसी किसी चीज़ में, तो वैसे ही तुम्हारा ट्रांसड्यूसर जो है, हर ट्रांसड्यूसर के अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, and these characteristics are important for the transducer to be a good transducer. जितने अच्छे characteristics होंगे उतना अच्छा transducer वो साबित होगा. So first is ruggedness. Ruggedness means कि outside suppose your transducer is kept under a physical system. Suppose for example a boiler. ठीक है, तुमने अपना थर्मोमीटर या थर्मिस्टर या थर्मोकपल जो भी है वो बॉयलर के अंदर इंस्टॉल किया है, एंड बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑफ द बॉयलर, अगर तुम्हारा सेंसर 10 दिन में 15 दिन में ख़राब हो जाए तो ऐसे सेंसर का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज द रगडनेस ऑफ द सेंसर इज़ वेरी लेस, यानी कि वो उस एक्सट्रीम फिजिकल क्वांटिटी को सस्टेन करने लायक होना चाहिए जहाँ पर तुम उस सेंसर को यूज़ कर रहे हो, तो the sensor should be able to sustain the huge or extreme physical quantity, physical environment, तो उस property को बोला जाता है ruggedness of the sensor. Second is linearity. What is the meaning of linearity? Linearity का मतलब क्या समझते हो? हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज का मैम, चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. Basically yes, change of physical quantity यानी या फिर change of input. अगर तुम्हारा one second. Okay, I'll have to मैं linearity का एक एग्जाम्पल बाद में बताती हूँ तुम लोग को, क्योंकि मुझे ये पीपीटी बंद करना पड़ेगा. So linearity is something
which says कि input with the change of input the change of output should be linear, यानी कि y is equal to mx plus c, you know that this is a linear equation. तो जितना equation complicated होता जाएगा, y is equal to mx plus c में तुम्हारा y is your output, x is your input. तो suppose कि x तुम्हारा temperature है और y तुम्हारा voltage है. टेम्परेचर से तुम वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हो यूजिंग अ ट्रांसड्यूसर, ठीक है. तो द अमाउंट ऑफ एक्स यू आर चेंजिंग, उस हिसाब से जो वाई जो चेंज हो रहा होगा दैट विल बी लीनियर टू एक्स, यानी टेम्परेचर के चेंज के साथ तुम्हारा वोल्टेज जो है वो लीनियरली बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लीनियरिटी. जितना ज़्यादा इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तुमको पता है कि बहुत टाइप के इक्वेशंस होते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन सच एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 पैरामीटर इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, हाइपरबोला, बहुत सारे टाइप के इक्वेशन होते हैं, ठीक है. लेकिन लीनियर इक्वेशन को सबसे बेस्ट इसलिए माना जाता है बिकॉज इसमें जो अमाउंट ऑफ एरर है वो कम आता है बिकॉज ऑफ पैरामीटर्स कम होते हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में दो ही पैरामीटर हैं, एक है m और दूसरा है c, ठीक है. तो बिकॉज पैरामीटर्स कम होते हैं इसलिए इसके मतलब विद द चेंज ऑफ इनपुट जो चेंज ऑफ आउटपुट आएगा वो बेस्ट आएगा एज कम्पेयर टू अदर इक्वेशंस. अगर क्वाड्रेटिक से कंपेयर करो या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो एरर जो आएगा वो कम आएगा. तो बेस्ट इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन को माना जाता है. रिपीटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी मीन्स कि हर बार सपोज फॉर अ चेंज ऑफ 5 डिग्री ऑफ टेम्परेचर द ट्रांसड्यूसर इज मेजरिंग 20 volts, ठीक है. फॉर अ चेंज ऑफ 5 डिग्री ऑफ टेम्परेचर द ट्रांसड्यूसर इज मेजरिंग 20 volts. तो हर बार ये 5 वोल्ट पे 20 वोल्ट ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक बार 5 वोल्ट चेंज हुआ तो 20 वोल्ट दिखा रहा है, नेक्स्ट टाइम 5 वोल्ट हुआ चेंज तो 30 वोल्ट दिखा रहा है. तो तुम दोनों में से कौन सी रीडिंग को सही मानोगे? तो उस केस में देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन measuring the correct reading. So that is why the repeatability of the transducer should be good, कि हर बार जितना भी डिग्री ऑफ चेंज हो रहा है फिजिकल क्वांटिटी में उसके अकॉर्डिंग जो चेंज इन इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो सेम होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स अबाउट रिपीटेबिलिटी. फोर्थ इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी के बारे में तुमको ऑलरेडी मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं. हाई स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी विच मीन्स कि तुम्हारा सेंसिंग एलिमेंट या ट्रांसड्यूसर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए. मतलब रीडिंग्स जो आ रही हैं वो एक्यूरेट हो और सेम हो. मतलब एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी को मिलाओगे तो देयर विल बी हाई रिलायबिलिटी ऑफ योर ट्रांसड्यूसर. जितनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी रीडिंग, जितनी ज़्यादा रिपीटिंग रीडिंग्स होंगी उतना ज़्यादा रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी तुम्हारे सिस्टम का ज़्यादा अच्छा होगा. स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट शुड बी हाईली रिस्पॉन्सिव. ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेम्परेचर तो बढ़ गया 5 डिग्री पर तुम्हारा सेंसर 15 मिनट बाद सेंस कर रहा है. कई बार ऐसा तुम लोगों ने नोटिस किया होगा इन योर मोटर बाइक्स और इन योर कार्स. एक बार मेरे साथ भी हुआ था कि हमने फ्यूल डलाया कार में और फ्यूल डलाने के बाद जो तुम्हारा फ्यूल का इंडिकेटर होता है वो फ्यूल का इंडिकेटर इफ़ यू हैव फुल्ड योर टैंक तो तुम फुल में दिखाना चाहिए, पर वो 2 दिन तक फुल में दिखाया ही नहीं, वो मिडल ऑफ द टैंक में ही दिखा रहा था. सो आफ्टर 2 days वो फुल पे दिखाया. तो इतनी देर में क्या होगा कि तुमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा फ्यूल जो है वो टैंक में गया या तुम्हारे पेट्रोल पंप वाले ने तुम्हारा फ्यूल का चोरी कर लिया, पैसे ले लिया. तो दिस शुड नॉट हैपन. द ट्रांसड्यूसर शुड हैव अ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स. मतलब जिस टाइम पे तुमने चेंज किया अपना फिजिकल क्वांटिटी उसी टाइम पे विदिन सपोज विदिन 1 minute और विदिन 2 minutes the response should be there in the transducer. otherwise वो ट्रांसड्यूसर किसी काम का नहीं है अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स का स्पीड बहुत ख़राब है. तो 7th इज सेंसिटिविटी. अगेन सेंसिटिविटी तुमको पता है कि with the change of output there should be a change of with the change of input there should be a change of output. तो sensitivity means कि जितना ज़्यादा मिनिमम चेंज होगा आउटपुट में उतना ज़्यादा अगर इनपुट में वो
सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, जितना ज़्यादा चेंज होगा इन इनपुट, जितना मिनिमम चेंज होगा इन इनपुट, अगर वो तुम्हें आउटपुट में रिफ्लेक्ट करता है तो वो सेंसर या वो ट्रांसड्यूसर हाईली सेंसिटिव है। यानी कि अगर तुम्हारा ट्रांसड्यूसर अगर वन सपोज 1 मिली एम्पियर का चेंज भी अगर अनकाउंटर कर पा रहा है तो दैट मीन्स कि योर ट्रांसड्यूसर इज़ वेरी सेंसिटिव। तो सेंसिटिव होना चाहिए सो दैट कि इनपुट का चेंज को मेजर कर पाए। 8th is your small size because all these transducers are incorporated in the electronic devices, तो इनका साइज जो होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। इसीलिए देखोगे विद टाइम वी हैव इवॉल्व्ड विद द ट्रांसड्यूसर्स। पहले स्ट्रेन गेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता था एज अ ट्रांसड्यूसर। स्ट्रेन गेज क्या होता है, आई होप तुम लोग ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा है ना? यस मैम। तो व्हाट इज अ स्ट्रेन गेज? मैम मैम चेंज इन लेंथ का प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है उसके प्रिंसिपल। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो बेसिकली वेट, हम स्ट्रेन गेज में वेट डालते हैं सिस्टम में, और सिस्टम में वेट डालने से हमारा जो भी वायर है वो एलोंगेट या कंप्रेस होता है डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द स्ट्रेन गेज। तो देयर इज अ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस का जो रिलेशनशिप है दैट वर्क्स इन स्ट्रेन गेज। बट स्ट्रेन गेज के साथ प्रॉब्लम क्या था, पहले जो स्ट्रेन गेज होता था वो एक मैकेनिकल सिस्टम से बना हुआ स्ट्रेन गेज होता था जो कि बहुत लार्ज साइज का होता था। तो वो हम छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ नहीं कर पाते थे। तो आजकल जो स्ट्रेन गेज बनता है वो एक सेमीकंडक्टर की तरह ही स्ट्रेन गेज, छोटा स्ट्रेन गेज होता है। सो दैट इज़ हाउ वी हैव इवॉल्व्ड इन साइज ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। तो अब बहुत छोटे छोटे ट्रांसड्यूसर्स, थर्मिस्टर भी देखोगे तो बिल्कुल डायोड के साइज़ का, थायरिस्टर्स के साइज़ का, मॉसफेट्स के साइज़ का तुमको थर्मिस्टर मिलता है। तो वी हैव evolved with size so that you can use this transducer in electronic circuits. So this is the selection factors of transducers. First is operating principle. The transducer are many times selected on the basis of operating principle used by them. The operating principle used may be resistive, inductive, capacitive, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक एंड पीजोइलेक्ट्रिक एक्सेट्रा। अभी ये इसका मतलब क्या है वी विल अंडरस्टैंड इट इन द लेटर क्लासेस जहाँ पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जो भी ये अभी मैंने जैसे बोला रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज का जो एग्जांपल दिया, तो स्ट्रेन गेज इज अ रेजिस्टिव काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर जहाँ पर विद द चेंज ऑफ वेट हमारा जो लेंथ है वो चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज हो रहा है। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए से टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज इज रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज। शायद तुम लोगों ने LVDT का नाम सुना होगा, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। तो अभी नहीं सुना है तो अभी हम लोग आएंगे उस पर। तो ये एक इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। वैसे ही हमारे पास कुछ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है। तो बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर में रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इंडक्टिव में इंडक्टेंस चेंज हो रहा है, कैपेसिटिव में कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। जैसे कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो एल या ए दोनों को चेंज करें या एक को चेंज करें उससे हम आर को चेंज कर सकते हैं। तो दैट ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इज डिपेंडेंट अपॉन रेजिस्टिव नेचर। सिमिलरली एल जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं या इंडक्टेंस का कोर कहाँ से कहाँ तक मूव हो रहा है, फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, उस पर हम इंडक्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टेंस। सिमिलरली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D, right? तो एरिया बिटवीन द टू एरिया ऑफ द टू पैरेलल प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो उसको चेंज करके यानी एरिया ऑफ द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर या डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर चेंज करके हम टोटल कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज द selection factor of transducer based on which you can
सेलेक्ट योर ट्रांसड्यूसर कि बेसिकली इस फिजिकल क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, या परमिटिविटी चेंज हो रही है, क्या चेंज, इंडक्टेंस चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करके क्या चेंज हो रहा है, उस हिसाब से हम अपना ट्रांसड्यूसर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। So first is your operating principle, second is your sensitivity. The transducer must be sensitive enough to produce detectable output. तो कितना सेंसिटिव चाहिए उस बेसिस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज योर ऑपरेटिंग रेंज, द ट्रांसड्यूसर शुड मेंटेन द रेंज रिक्वायरमेंट एंड हैव अ गुड रिजोल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज, यानी कि किस रेंज का आउटपुट तुमको चाहिए उस रेंज के हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रांसड्यूसर। Accuracy, high accuracy is assured. Obviously, cross sensitivity. It has to be taken into account when measuring mechanical quantities. There are situations where the actual quantity is being measured is in one plane and the transducer is subjected to variation in another plane. As you know that there are three dimensional variations of planes x, y and z. तो कई बार ऐसा होता है कि the measuring quantity is being changed in one plane of operation और ट्रांसड्यूसर तुम्हारा दूसरे प्लेन ऑफ ऑपरेशन में लगा हुआ है। सो क्रॉस सेंसिटिविटी मीन्स कि इस प्लेन से दूसरे प्लेन में भी तुम्हारा मतलब 3 डायमेंशनल इफेक्ट सेंसिटिव होना चाहिए तुम्हारा ट्रांसड्यूसर, कि वो किसी भी डायमेंशनल के चेंज, किसी भी एक डायमेंशन के चेंज को दूसरे डायमेंशन में सेंस कर सके। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स अबाउट क्रॉस सेंसिटिविटी। Errors, the transducer should maintain the expected input-output relationship as desired by the transfer function so as to avoid errors. यानी transfer function क्या होता है? Transfer function is ratio of output by input. तो तुम्हारा ट्रांसड्यूसर का जो ये रेशियो है ट्रांसफर फंक्शन का ऑफ आउटपुट बाय इनपुट शुड रिमेन कांस्टेंट सो दैट कि जो एरर है वो मिनिमम रहे with time. But these are all theoretical things. Practical में ऐसा कोई ideal situation नहीं होता है। With time तुम देखोगे कि अगर इन केस ऑफ ओवन्स या इन केस ऑफ वेइंग मशीन भी अगर तुम देखो, जो भी तुम शॉप्स में जाते हो ग्रॉसरी खरीदने या कुछ भी जो भी खरीदने जाते हो, तो देखोगे कि जो भी वेइंग मशीन भी है कुछ टाइम बाद उनका वेइंग मशीन में ज़ीरो नहीं दिखाता है, ज़ीरो के अलावा कुछ और दिखाएगा। तो बेसिकली विद टाइम देयर इज़ रस्टिंग इनसाइड द वेइंग मशीन। जो मेटालिक पार्ट है उसको या तो प्रॉपर क्लीन करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना पुराना तुम्हारे डिवाइस हुआ है उस पर हमारा जो एरर्स है। समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या आवाज़ नहीं आई, फिर से बोलो। गायब हो गया। बेसिकली एरर्स जो है वो प्रैक्टिकली हम ये बोलते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट बाय इनपुट हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ता है हमारे सिस्टम का या जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका, तो प्रॉपर मेंटेनेंस रिक्वायर रहता है जिसको हम टाइम टू टाइम मेंटेन करके और वापस से उसका ट्रांसफर फंक्शन जो है वो जो भी इनिशियल ट्रांसफर फंक्शन रहा होगा उस पर फिक्स करते हैं। सेवेंथ इज ट्रांसिएंट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। जैसे तुम लोगों ने ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पढ़ा होगा इन केस ऑफ नेटवर्क थ्योरी। तो ट्रांजिएंट मतलब कि विद द चेंज ऑफ इनपुट देयर शुड बी अ चेंज ऑफ आउटपुट। तो दैट इज व्हाट इट मीन्स अबाउट, इट मीन्स विद ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट मतलब टाइम डोमेन में अगर कुछ चेंज हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कुछ चेंज हो रहा है। तो ये बिकॉज अभी शायद तुम लोग कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़े हो, तो कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़े होगे तो शायद ये समझ में नहीं आएगा, पीक ओवरशूट, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम। तो ये जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि व्हाट इज़ अ पीक ओवरशूट, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, ये वहाँ पे पढ़ा जाएगा। अभी इसका कोई खास ज़रूरत नहीं है तुमको। लोडिंग इफेक्ट, अगेन यू नो दैट कि
In case of loading effect, there should be high input impedance of the measuring instrument। ये शायद जब मैंने वोल्टमीटर एमीटर पढ़ाया होगा तब भी बताया था तुम लोगों को कि जो इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है वो हाई रहता है, बिकॉज लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। अगर मैक्सिमम करंट तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट्स में से जाने लगेगा तो लोड की तरफ कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इसीलिए जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका इम्पिडेंस जो है वो हाई रखा जाता है। Environmental capability, it should be assured that transducer selected to work under specified environmental condition maintains its input output relationship and does not break down। मतलब कि with the change of environmental condition, इसका क्या मतलब है? अब जैसे कि कभी तुम्हारा लाइटनिंग हो रही है, थंडरिंग हो रही है, या ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ह्यूमिडिटी कम हो गया, स्नोफॉल हो रहा है, तो अलग अलग जगह में इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर सपोज कि तुम्हारे टीवी में जो थर्मिस्टर लगा है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी कोई टीवी यूज़ कर रहा होगा, सेम टीवी, और यहाँ पर झारखंड में भी सेम टीवी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर तुम्हारा थर्मिस्टर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के टेम्परेचर से इफ़ेक्ट होने लगा, तब तो हर जगह के हिसाब से अलग अलग ट्रांसड्यूसर लगाना पड़ेगा, राइट? अलग अलग टीवी बनाना पड़ेगा कि ये टीवी जम्मू एंड कश्मीर में यूज़ कर सकते हैं, ये टीवी झारखंड में यूज़ कर सकते हैं, ये केरला में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करने के लिए योर ट्रांसड्यूसर शुड बी केपेबल ऑफ ऑल द इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और उनसे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। So that is one of the property of the transducer, that it should not get affected by the environmental conditions. Insensitivity to unwanted signals. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे अभी बताया कि सपोज तुम्हारा मोबाइल रखा हुआ है ऑन अ टेबल और बाहर में थंडरिंग हो रहा है, थंडर स्टॉर्म्स हैं, खूब तेज़ बिजली कड़क रही है, और तुम्हारे मोबाइल में जो भी सेंसर्स लगे हुए हैं, देयर आर मेनी सेंसर्स, वॉइस सेंसर्स, देन टेम्परेचर सेंसर्स, बहुत टाइप के सेंसर्स लगे हुए हैं तुम्हारे मोबाइल में। अगर उस थंडरिंग या उस आवाज़ से या उस बिजली के कड़कने से अगर तुम्हारे मोबाइल के सेंसर्स इफेक्ट होंगे, so that will give a wrong output in your mobile, यानी बेकार में हो सकता है तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए या काम करना बंद कर दे बिकॉज ऑफ अनवांटेड सिग्नल्स विच इज़ प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। तो योर सेंसर शुड बी केपेबल ऑफ should be insensitive to unwanted signals. So that is what it means here, insensitive to unwanted signals. The transducer should be minimally sensitive to unwanted signals and highly sensitive to desired signal. Desired signal मतलब जो उस फ़ोन के अंदर हो रहा है। सपोज तुमने फ़ोन को चार्ज में लगाया है और उससे तुम्हारे फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, ठीक है? तो दैट इट मीन्स कि दैट इज़ योर डिज़ायर्ड सिग्नल, कि अगर उससे तुम्हारे फ़ोन का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वहाँ पर तुम्हारा थर्मिस्टर जो है वो रिस्पॉन्स करना चाहिए। लेकिन बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, 47 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, तो उससे तुम्हारे थर्मिस्टर को रिस्पॉन्स नहीं करना है। तो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स अबाउट इनसेंसिटिव टू अनवांटेड सिग्नल। मैं ये जो स्क्रीनशॉट्स है ये भेज दूँगी तुम लोग को, और इसी से तुम लोग अपने नोट्स बना सकते हो। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा मैं अलग से भी नोट्स दे दूँगी, बट दीज आर वेरी थियोरेटिकल टॉपिक। जब हम ईच ट्रांसड्यूसर पे आएंगे तो वहाँ पर थोड़े बहुत अगर नोट्स चाहिए होगा तो मैं वो अलग से दे दूँगी, ठीक है? सो ये स्क्रीनशॉट मैं भेज दूँगी तुम लोग के गूगल क्लासरूम में। नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। So classification of transducers में you can see there are few classification on the basis of principle used. There are three classification जो कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। वैसे ही यहाँ पे ट्रांसड्यूसर में ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज्ड देयर इज कैपेसिटिव, inductive and resistive transducer. Second classification is active or passive.
Now you know about active and passive element. What is an active and passive element? ये मैम network पैसिव एलिमेंट absorb energy. and active element. मैम एक्टिव एलिमेंट मैम delivers. For example, For example, मैम inductor in discharging when discharge or op amp. is an active element, right? Yes, ma'am. And passive element, Ma'am resistor. okay. Whether a transformer is an active element or a passive element. Ma'am passive. Passive, ma'am. Or generator, Active. are you sure? Ma'am passive. Generator, electrical generator. Active है या passive है? तुमने भी खुद Ma'am बोला कि passive ma'am. active element generates energy. So generator should be an active element, right? Ma'am, but it requires excitation energy, external excitation energy. Anybody else जो counter करना चाहता हो? Whether electrical generator is an active element or a passive element. मैम एक्टिव ही होगा क्योंकि जनरेटर सप्लाई करता है पावर को, एनर्जी को, इसीलिए। Ma'am passive. इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है ना, तो उसको एक्टिव एलिमेंट ही बोल सकते हैं। Yes, it is an active element because it does not take an electrical input. ठीक है, electrical input अगर ले रहा है तो it is not an active element. But अगर electrical input नहीं ले रहा है तो it is an active element. ठीक है, so don't get confused. Generator is also an active element and transformer is a passive element because उसको जब तक तुम input साइड या प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो जो भी हो, अगर उसको तुम इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं दिया तो आउटपुट में तुमको कुछ नहीं मिलेगा. सो सिमिलरली इन केस ऑफ ट्रांसड्यूसर्स ऑल्सो देर आर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर. ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर हैं जिनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की कोई ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू चेंज द फिजिकल क्वांटिटी वो खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं. And one example of electrical active transducer is piezoelectric crystals. I guess there is a yes, this is ये दिख रहा है तुम लोगों को. So this is an example of a piezoelectric crystal. अगर हम this ये animation दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा है? यस मैम जी। यस मैम, दिख रहा है। सो दिस इज़ अ क्रिस्टल. ये जो कंप्रेस और एक्सपैंड हो रहा है दिस इज़ नथिंग बट अ क्रिस्टल. इसका एक्चुअली तुम लोग के लैब में भी एक एक्सपेरिमेंट है पीज़ोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का, तो वो कराया जाएगा तुम लोग को. सो दिस इज़ अ क्रिस्टल. ये बेसिकली बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं जनरेट करता है. दिस जनरेट्स अ वोल्टेज इन मिली वोल्ट्स माइक्रो वोल्ट्स में वोल्टेज जनरेट करेगा. बट दिस इज़ एन एक्टिव एलिमेंट बिकॉज इसको तुमने अलग से कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दी, तो यू आर गिविंग अ मैकेनिकल फोर्स. ऊपर से कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपैंड कर रहे हो एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट इस क्रिस्टल का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका अलाइनमेंट चेंज होता है और उनके अलाइनमेंट सपोज यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर में पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है क्रिस्टल में और वो पोटेंशियल डिफरेंस तुम यहाँ वोल्ट मीटर में मेजर कर सकते हो. सो दीज काइंड ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर एक्टिव ट्रांसड्यूसर जिनको इलेक्ट्रिकल इनपुट देने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिकल जनरेटर के लिए कि जनरेटर में भी तुम मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो, दैट इज़ ट्रू, बट इलेक्ट्रिकल इनपुट नहीं दे रहे हो जिसकी वजह से उसको एक्टिव एलिमेंट में ट्रीट किया जाता है. यू आर giving a mechanical input and you are getting an electrical output. So that is also an active element. ये भी piezoelectric transducer जो है इसको भी तुम mechanical force दे रहे हो, compress कर रहे हो या expand कर रहे हो and you are getting a electrical output. So these types of transducers are active transducer. In comparison to active transducer, if you see an LVDT, यहाँ पर ये animation दिख रहा होगा,
राइट साइड में। सो दिस इज एन LVDT। यहाँ पर एक प्राइमरी कॉइल दिख रहा होगा और ये सेकेंडरी, दो सेकेंडरी कॉइल है, दिख रहे हैं। यस मैम। सो ये जो ब्लैक कलर का ये जो कोर है, दिस कोर इज बेसिकली मूवेबल कोर, जिसके लिए हम लोग इसको लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। सो दिस कोर इज, इसका डिस्प्लेसमेंट कराते हैं और ये कोर जो है जैसे ये लेफ्ट से राइट मूव करेगा वैसे इसका फ्लक्स जो है, प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से या प्राइमरी का फ्लक्स जो सेकेंडरी 1 और सेकेंडरी 2 से लिंक हो रहा है, वो फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। And depending upon that, output of secondary, which is given by dark blue color, and output of secondary 2, which is given by green color, ये दोनों output जो है वो change होगा on the basis of this position of this core। वो core left में है या core right में है, उस पर इन दोनों का output change होगा और इनका differential output जो हम यहाँ से ले रहे हैं, इन दोनों को देखो यहाँ पे connect किया गया है। सो इसका जो डिफरेंशियल आउटपुट लेंगे वो चेंज होगा। तो LVDT वो पढ़ाऊंगी मैं अलग से, बस एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या है। अब इसमें क्या है कि प्राइमरी कॉइल में सप्लाई देना मस्ट है। अगर तुमने प्राइमरी कॉइल में सप्लाई नहीं दिया तो यहाँ पर आउटपुट में सेकेंडरी साइड में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। सो प्राइमरी हैज़ टू बी गिवन सम इनपुट, इलेक्ट्रिकल इनपुट। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसड्यूसर। So LVDT is an example of passive transducer। और भी बहुत सारे जैसे स्ट्रेन गेज है, वो सारे ट्रांसड्यूसर्स जो है वो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स में आते हैं। मैम क्योंकि इसका सेकेंडरी में सप्लाई नहीं देंगे एलवीडीटी का? नहीं, सेकेंडरी में सप्लाई नहीं देंगे, सेकेंडरी से सिर्फ आउटपुट लेंगे। यहाँ पर ये जो ब्लू वायर दिख रहा है, ये दो ओपन वायर दिख रहे हैं ना, एक ब्लू और एक ग्रीन, इसी के बीच में हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं और वो वोल्ट मीटर दोनों सेकेंडरी के बीच का जो डिफरेंशियल वोल्टेज होता है, मतलब डिफरेंस ऑफ वोल्टेज होता है, वो मेजर करता है। ठीक है, तो उस डिफरेंस ऑफ वोल्टेज के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि इस कोर का जो है वो पोजीशन कहाँ पर है, वो बीच में है, वो लेफ्ट में है या वो राइट में है। बाय गिविंग द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज इन द सेकेंडरी आउटपुट, वो हम इसका पोजीशन बता सकते हैं। तो बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के टर्म्स में। इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट, सपोज 1 mm, 2 mm, 3 mm जो भी डिस्प्लेस कर रहे हो, उसको हम वोल्टेज के फॉर्म में सेकेंडरी में मेजर कर रहे हैं। और प्राइमरी में तुमको सप्लाई देना पड़ेगा। जब तक प्राइमरी में सप्लाई नहीं दोगे, फ्लक्स जनरेट नहीं होगा और वो फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी में कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो प्राइमरी में तुमको सप्लाई देना ही पड़ेगा। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। क्लियर है? और मैम सप्लाई क्या देंगे, डीसी की एसी? ट्रांसफार्मर को क्या सप्लाई देते हो? एसी। तो ये ट्रांसफार्मर है ना, तो AC देंगे। मैम वहाँ पर डीसी लिखा हुआ था ऐसे, DC लिखा था क्या? सेकंड पॉइंट में। I don't think this is right। मैम एसी होगा। क्या? मैम एसी होना चाहिए क्योंकि वो हाँ, यहाँ पर सिग्नल ये साइनसोइडल है ना। ये गलत लिखा हुआ है, सो करेक्टेड। ये DC नहीं होगा, AC ही होगा। ठीक है, सो ओके, सो अभी हम लोग कहाँ थे? हाँ, एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर पे। तो बेसिकली इट इज़ अ ट्रांसफार्मर, तो उसमें AC ही सप्लाई देंगे। सेकेंड थिंग इज प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। नाउ प्राइमरी ट्रांसड्यूसर इज द ट्रांसड्यूसर जो कि फर्स्ट स्टेप में ही हमको आउटपुट दे देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का आउटपुट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अ डायफ्राम। डायफ्राम इज नथिंग बट एक बलून टाइप का एक कंस्ट्रक्शन होता है, या फिर अगर तुम साइकिल का जो तुम्हारा टायर होता है, ट्यूब होता है, वो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायफ्राम। तो बेसिकली तुम प्रेशर से एयर इंसर्ट करते हो और तुम्हारा डायफ्राम का जो एरिया है वो एक्सपैंड होता है, राइट? तो बेसिकली दैट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, जहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही तुमको आउटपुट मिल रहा है। यू आर गिविंग द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द डायफ्राम एंड योर डायफ्राम का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है।
तो डिपेंडिंग अपॉन की साइज कितना है तुम प्रेशर को नाप सकते हो बाय द साइज ऑफ द डायफ्राम, या ट्यूब जो है साइकिल का ट्यूब है उससे तुम प्रेशर को डायरेक्टली मेजर कर सकते हो. सो दैट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, जहाँ फर्स्ट स्टेप में ही तुम फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल प्रेशर मेजर कर सकते हो. सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर इज द ट्रांसड्यूसर जहाँ पर 2 स्टेप में तुमको आउटपुट मिलता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है. 2 स्टेप में कहने का मतलब क्या है कि सपोज दिस इज योर LVDT, ठीक है. अब इसका ये जो कोर है ये डिस्प्लेस करा रहे हैं. नाउ सपोज कि इस कोर को डिस्प्लेस कराने के लिए यहाँ पर हमने इस कोर के साथ एक अगर डायफ्राम या एक साइकिल का ट्यूब कनेक्ट कर दिया, और उस ट्यूब के साथ हमने एक पंप कनेक्ट कर दिया जिससे हम प्रेशर दे रहे हैं. तो हम प्रेशर देंगे साइकिल के ट्यूब में, वो ट्यूब एक्सपैंड करेगा, तो इस कोर को डिस्प्लेस करेगा, और इस कोर को डिस्प्लेस करेगा तो हमको एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा. तो यहाँ पर देर आर 2 स्टेप्स जहाँ से हम एक क्वांटिटी से दूसरे क्वांटिटी में चेंज देख रहे हैं. यानी पहला हमने प्रेशर दिया तो साइकिल का जो टायर ट्यूब है वो एक्सपैंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ. सो प्रेशर इज योर फर्स्ट क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज योर सेकेंड क्वांटिटी, एंड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज योर थर्ड क्वांटिटी. तो 2 स्टेप में हमारा कन्वर्जन हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. ठीक है. सो एक्टिव, पैसिव, प्राइमरी, सेकेंडरी. एनालॉग डिजिटल तुमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो एनालॉग सिग्नल मेजर करेगा वो एनालॉग है, जो डिजिटल सिग्नल मेजर करेगा वो डिजिटल है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड अ डिजिटल सिग्नल? Ma'am, analog signals are continuous with respect to time एंड डिजिटल? and discrete. ओके, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यू या कोई फिक्स्ड वैल्यू अगर तुमको मिल रही है सो दैट इज अ डिजिटल सिग्नल. एंड एक टाइम के साथ अगर एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू मिल रही है सो दैट इज योर एनालॉग सिग्नल. सो DAC एंड ADC यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आर एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, जहाँ पर तुम एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा. द लास्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ट्रांसड्यूसर्स एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर्स. ठीक है, या इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल बहुत है. अगर तुमको एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है तो तुम बहुत अच्छे से ये जो चैप्टर है ये समझ सकते हो. मैंने इसीलिए ये इससे पढ़ाने का कोशिश किया क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन और थोड़ा बहुत ये देखने से ज़्यादा क्लियर होगा. जैसे कि ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स ट्रांसड्यूसर. कहने का क्या मतलब है? जैसे तुम इस पे प्रेशर दे रहे हो, यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, सिमिलरली ये उल्टा भी काम करता है. अगर तुम इसको वोल्टेज दोगे तो ये एक्सपैंड और कंप्रेस होगा साइज में. ठीक है, तो पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स ट्रांसड्यूसर. यानी फिजिकल क्वांटिटी दोगे तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दोगे तो फिजिकल क्वांटिटी देगा. ठीक है, यानी उल्टा अगर काम करे तो दैट इज योर इनवर्स ट्रांसड्यूसर. कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दो तो वो फिजिकल क्वांटिटी में अगर कन्वर्ट हो जाए सो दैट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज कॉल्ड एज इनवर्स ट्रांसड्यूसर. ठीक है. सो ट्रांसड्यूसर्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन, मेथड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, नेचर ऑफ द आउटपुट सिग्नल एंड सो ऑन. मतलब इन सारे चीज़ों पे हमारा ट्रांसड्यूसर डिपेंड करता है. तो दिस इज अ वेरी वास्ट क्लासिफिकेशन, और on the basis of these classification we will study our different type of transducers. ठीक है, तो ये इसको एक बार तुम लोग आज पढ़ लेना. एक्टिव, पैसिव, ये डिटेल्स इसके बारे में मेंशन्ड है. देन टुमारो वी विल मे बी स्टार्ट विद स्ट्रेन गेज. कल के क्लास में हम लोग एक पर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर ट्रांसड्यूसर से स्टार्ट कर सकते हैं. तो आई विल सेंड दीज नोट्स टू यू. एक बार इसको देख लेना. इसमें सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर्स अलग अलग मेंशन है. जैसे दिस इज अ फोटोवोल्टाइक ट्रांसडक्शन, जहाँ पर दिस
सपोज फॉर एग्जांपल अ सोलर सेल में क्या हो रहा है, हम फोटोवोल्टाइक एनर्जी दे रहे हैं, फोटो एनर्जी दे रहे हैं यानी सन रेज दे रहे हैं, और वो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है उसको, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फोटोवोल्टाइक ट्रांसडक्शन। तो ये सारा जस्ट दिस इज अ क्लासिफिकेशन जिसको एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गो थ्रू इट वंस एंड देन वी विल स्टडी अ पर्टिकुलर टाइप। कल हम लोग स्ट्रेन गेज से स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड इफ यू हैव